Yeah, we are a part of God's big family हम परमेश्वर का बड़ा परिवार का एक हिस्सा है, because we have put our trust in Jesus Christ. क्योंकि हमने अपना भरोसा यीशु मसीह में डाला है And the finished work of the cross, और उस परिपूर्ण कार्य जो सूली पर उन्होंने किया उसमें it is a great miracle. ये एक बड़ा चमत्कार है। Yeah, what Sweeten just brought, he brought down every dividing wall and made us one family. That's a great miracle. वो यीशु मसीह के द्वारा सारे जो दीवारें जो हमें दूरी करते हैं, अलग करते हैं, उसको तोड़ दिया। यही एक बड़ा चमत्कार है। A family beyond religion, caste, creed, and all kinds of division. एक ऐसा परिवार जो धर्म, जाति, सोच, सभ्यता से परे है, हटके है, Yeah, because we have one Father क्योंकि हमारा एक ही पिता है, and we have one Savior. हमारा एक ही उद्धार करता We है have one Spirit और हमारी एक ही आत्मा है and we have one baptism और हमारा एक ही बपतिस्मा है and we have one book और हमारी एक ही किताब है and we have one future. और हमारी एक ही भविष्य है। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, I have been journeying with the Lord for the last 38 years. 38 साल से मैं परमेश्वर के साथ सफर पे हूँ। I'm still amazed. God could, pick up someone like me and use me in this great mission that और He has अब भी for मैं each one चकित of us. होता हूँ कि परमेश्वर मुझ जैसा कोई चुनता है और हमारे इस्तेमाल करते हैं इस महान मिशन के लिए जिसमें हम सब सहभागी हैं। Yeah, but the mission for each one of us is very simple. हमारी जो मिशन है हर एक के लिए वो बहुत ही साधारण है। Make Jesus known to all people. यीशु सारे लोगों तक उनकी पहचान कराओ And bring them into the family. और उनको परिवार में शामिल करो So that more people will worship Him. ताकि और लोग उनकी आराधना More करें people will be involved in bringing His और kingdom. लोग शामिल हो उसके राज्य को लाने में। So this morning I want to look at a story of a family on a mission. आज सुबह हम एक कहानी को देखना चाहता हूँ, एक ऐसे परिवार का जो मिशन पे थे। And I was encouraged some of you got a word and shared about this man called Moses. और मैं प्रोत्साहित हूँ किस तरह से कुछ लोगों ने बांटा एक वचन और भविष्यवाणी इस मनुष्य के मूसा के इस कहानी के द्वारा। Moses was a Hebrew. He was born as a slave. मूसा जो था वो इब्री थे और वो एक गुलाम के परिवार में पैदा हुआ। And to escape killing of all the babies, his mother by faith, put him in the Nile River. और ताकि मूसा बच सके उन बच्चों की हत्या में तो उसकी माँ ने उसके नील नदी में डाल दी। Many of you have read the Bible, you know the story, but I'll still, share a little bit of that. तो ने बाइबल पढ़ा है, कहानी जानते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा And बात Pharaoh's करूँ। daughter found this baby, and he was brought up in the palace. और फरौन की जो बेटी थी इस बच्चे को वहाँ पे नदी में मिलता है और उसको राजमहल में उसका परवरिश होता है। He got all the education, he's got every training that is possible, and he grew up in the palace. और जितना शिक्षा और प्रशिक्षण मुमकिन था उस समय में वो सारा उनको मिला और उस राजमहल में वो But he बड़ा हुआ। always knew he was part of this slave community. लेकिन वो हमेशा जानता था कि मैं उस गुलाम के समाज से He आता हूँ wanted to do something for them. और वो चाहता था कि उनके लिए वो कुछ करे Thought he could do something. और वो सोचा कि वो कर भी सकता है। 40, he did something and he had to run away from Egypt. 40 साल के उम्र में उसने कुछ किया भी और उसकी वजह से उनको मिस्र देश से भाग के जाना पड़ा। And he lived in a place called, in a people called Midianites or Midians for 40 years. और मिदियान के लोगों के बीच में फिर वो जाकर रहे 40 साल के लिए। And he became a shepherd. He was looking after sheep. He lost all the vision. He lost everything. He became part of that community, and he was just living for the sake of living. और वहाँ पर उस समाज में वो एक चरवाहा बना, भेड़ों की देखरेख की और जितना भी उसका दर्शन था, सोच था, वो सारा खो बैठा
और सिर्फ जी रहे थे उस समाज He में। got married to one of the girls from that community. उसी समाज से उन्होंने एक लड़की से भी शादी की, He had 2 sons. 2 बेटे हुए। But God never stopped thinking of him and wanting to use it. लेकिन परमेश्वर कभी रुका नहीं था उसके बारे में सोचना या उसका इस्तेमाल जो वो करना चाहता था मूसा। So God met with them in a burning bush. तो परमेश्वर आकर एक जलती हुई झाड़ी में उससे मुलाकात करता है And he commissioned him. और उनको उसका नियुक्तिकरण करता है And gave him the authority to go and deliver God's people. और उनको वो अधिकार देता है कि वो जाकर परमेश्वर के जनों को छुटकारा ला। And that's the story I want to just bring this morning. और यही कहानी मैं आज सुबह लाना If you have चाहता your हूँ। Bible, open with me to Exodus chapter 4, verse 18 to 28. और अगर तुम्हारा बाइबल है तो निर्गमन 4 के वचन से Yeah, I want Maria to read that if you can just read one verse 18. 18 से 38 पढ़ लीजिए। It says in verse 18 that Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, "Let me return to my own people in Egypt to see if any of them are still alive." Verse 18. तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। ठीक है कंटिन्यू। और यहोवा ने मैदान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैं न तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा बेटा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मैं मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे चेते को ठाक करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खरवी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने कहा, क्या बात कहकर उसको भेजा है और कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। Let us pray. परमेश्वर धन्यवाद है कि ये परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमको अभिषेक को परमेश्वर सुनने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर, और आपका आज्ञा पाने के लिए परमेश्वर धन्यवाद। आपका उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सबको आशीष से भरो परमेश्वर, अनुग्रह से भरो परमेश्वर,
And परमेश्वर सबको अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. This is an amazing story. ये एक बहुत हैरान करने वाली कहानी है। These few verses that we just read, ये चंद जो वचन हम पढ़े and it speaks of the entire book of Exodus. वो संपूर्ण निर्गमन की किताब की जिक्र करता है And in that there is the story hidden और उसमें एक कहानी छिपी है of how God is using this man of God called Moses. कैसा परमेश्वर इस पुरुष जो मूसा है उसका इस्तेमाल करता है। And he says to Moses, God says to Moses, go and tell Pharaoh that let my son go so that he may worship me. और परमेश्वर मूसा को कहता है जाओ और फैरान को बोल मेरे बेटे को छुटकारा दे ताकि वो आकर मेरी आराधना And करे। God is saying to Moses, he is not going to listen to you. और परमेश्वर मूसा से ये भी कहता है वो तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं I'm है going to harden his और heart. मैं उनका हृदय और कठोर बनाएगा I will do great miracles. और मैं बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, I will perform signs and wonders. मैं चिन्ह चमत्कार करूंगा And a time will come, और एक समय आएगा Israel, my firstborn, and let my son will go and they will worship me. इज़राइल जो मेरा प्रथम जन्मा हुआ बेटा है वो आए उनको छुड़ाएगा और वो आकर मेरे आराधना And करेंगे। if they don't do it, I will kill their firstborn. अगर वो ऐसे नहीं करते तो उनके प्रथम बेटों को मैं हत्या प्रदान God is करूंगा। saying, Israel is my family. एक तरह से परमेश्वर कह रहे हैं इज़राइल मेरा परिवार And है if they don't let you go to worship me, और अगर वो तुम्हें अनुमति नहीं देता है मेरी आराधना करने के I लिए will deal with their family. मैं उनके परिवारों से निपटूंगा Because I am your God, I am in the midst of you. क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर है और तुम्हारे बीचों बीच में हूँ। And the last miracle that God did was God had to deal with Pharaoh's firstborn and all the firstborns in Egypt. और जो अंतिम चमत्कार परमेश्वर करता है वो फारोन के जो प्रथम पुत्र था और मिस्र देश में जितने भी प्रथम पुत्र थे उनके साथ उन्हें निपटना And the पड़ा whole nation was released to go and और worship God. संपूर्ण इस्राएल का राष्ट्र को छुटकारा मिला कि वो जाकर परमेश्वर की आराधना करें Great victory and God raising up a nation. और हम वहां पर बड़ी जीत देखते हैं, विजय देखते हैं। परमेश्वर एक संपूर्ण राष्ट्र को आजाद कर देता है And God, to do that, God is commissioning a man. His name is Moses. और उसको करने के लिए परमेश्वर का नियुक्तिकरण देता है पुरुष को जिसका नाम है मूसा। And in this story that we read, it is not just Moses, but his whole family is getting ready to be involved in this great mission. और जैसे हम ये कहानी पढ़ते हैं हम देखते हैं ना सिर्फ मूसा लेकिन उनका संपूर्ण परिवार तैयार हो रहा है इस मिशन में शामिल होने के लिए। And God had to deal with something in their lives. और उनके जीवनों में परमेश्वर को कुछ बातों से निपटना पड़ा। Ultimately, God uses all of them for that purpose. अंत में परमेश्वर उन सबों का इस्तेमाल करते हैं उस मकसद के So लिए। this morning, God wants to say to each one of us, we are on a mission तो together. परमेश्वर आज सुबह हमसे हर एक से कहना चाहता है हम एक मिशन पे हैं एक साथ। Each one of us are called to a mission. हम में से हर एक को बुलाया गया है एक मिशन पर। Yeah, God has called and commissioned each one of us for this purpose to make Jesus famous in this world. परमेश्वर ने बुलाया और नियुक्तिकरण कराया ताकि हम जाकर यीशु को एक तरह से प्रसिद्ध करें इस संसार के राष्ट्रों के सामने। Ephesians 1 verse 4 it says, for he chose us in him before the foundation of the world. He has chosen each one of us for a purpose. एफेसियों 1:4 कहता है कि उन्होंने हमें चुना है संसार की नींव को गाड़ने से पहले हर एक को चुना है एक मकसद के लिए। John 15:16 says, you didn't choose me, but I chose you and I appointed you to bear fruits. यूहन्ना 15:16 कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्तिकरण किया है कि ताकि जो जाकर फल उत्पन्न करे। And he said, God is saying, I have chosen you and appointed you to bear fruit. मैंने तुम्हें चुना है और तेरी नियुक्ति की है तू जाकर फल उत्पन्न करे That you might go and bear fruit. ताकि तुम जाके फल उत्पन्न करे। I say to the person next to you, तेरे जो बाजू में व्यक्ति बैठा है उनसे कहो you are called for a mission. तुम्हें बुलाया गया है एक मिशन के लिए। Yeah, you are called for a mission. तुम्हें बुलाया गया है एक मिशन के And लिए you have a purpose. और तुम्हारी एक मकसद है।
Amen. You're called for a mission. तुम्हें मिशन के लिए बुलाया गया है। Yeah, we're not here by chance. हम यहाँ पर अकस्मात रूप से नहीं खड़ा आकर बैठे हैं। Yeah, we have not come, Sunday after Sunday to warm the chair and go back. We are on a mission. हमें दर रविवार को कुर्सी गर्म करने के लिए बुलाया नहीं गए, हम एक मिशन पर है। Yeah, as we come to the New Testament, जैसे हम नया नियम के पास आते हैं, the day Jesus was taken up into heaven, जिस दिन यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया, He commissioned all of us. उन्होंने हम सबों को की नियुक्तिकरण करा के दिया। He said, all authority in heaven and on earth has been given to me, Jesus said. उन्होंने कहा सारा अधिकार जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है वो मुझे दिया गया है। Therefore go. इसीलिए जाओ, Go make disciples of all nations. जाओ और सारे राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। Hallelujah. Hallelujah. He said, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy और Spirit. फिर उन्होंने कहा बपतिस्मा दे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, Make disciples शिष्य बनाओ and teach them. और उन्हें सिखाओ Teach them to obey everything that I have कि commanded you. जितना भी आज्ञा है मैंने दी है उसके प्रति वो आज्ञाकारी बने। It is not just for the selected few, it's not just for the pastor, but it's for ये everybody. गिने चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये पासवानों के लिए नहीं, ये सबों के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. Yes. Do you agree with me? क्या तुम मुझसे सहमत हो? It's for everybody. ये सबों के लिए है। Yeah, it's not only people who stand here and preach, but each one of us are commissioned to go. ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पर खड़े रह के प्रचार करते हैं, लेकिन हर एक की नियुक्तिकरण की गई है जाने के लिए। Yes. Amen. Yeah, in this portion we saw Moses has been called. इस हिस्सा में हम देखते हैं मूसा को बुलाया जाता है। And it says this portion might be read. It says they set out from Midian, the land of the Midians, to go to Egypt. और इस हिस्सा में देखते हैं कि वो निकल जाते हैं मिद्यान के देश से मिस्र देश की ओर जाने के लिए। Not alone. अकेले नहीं, He takes his wife. उसकी पत्नी को लेते हैं, He takes two of his sons. उनके 2 बेटों को लेकर जाता है And he is on that journey और वो उस सफर पे निकल जाता है with a clear commission from God. एक स्पष्ट नियुक्तिकरण लेकर परमेश्वर Go से। and speak to Pharaoh. जाओ और फ़िरौन से बात And tell करो him, let my son go और उनसे कहो मेरे बेटे को छुड़ा so that he can worship me. ताकि वो मेरी आराधना कर सके। I want to say it is God's mission. मैं कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर का मिशन है And he wants us to do his way. और वो चाहता है कि हम वो करें उनके तौर तरीके से। Yeah, it's not the way we want it to be done. जिस तरह से हम चाहते हैं वो तरीके नहीं, He wants us to do his way. वो चाहता है कि हम उनके तरीके Because अपनाएं, it is God's mission. क्योंकि ये परमेश्वर का मिशन है। And in this story, और इस कहानी में there's a bit of a twist. एक तरह से एक मोड़ लेता है। You know, God speaks to Moses from the burning bush परमेश्वर मूसा से जलती झाड़ी से बात करता है and, commissions him और उनकी नियुक्तिकरण कराता है and gives him all the strategies. और वो सारे रणनीति देते हैं उन्हें। And, at one point Moses says, I can't speak. Send somebody else. He's having some argument with God. और एक समय हो सकता है मैं बोल नहीं सकता, किसी और के को भेजो और वो परमेश्वर के साथ बात विवाद करने लगता है And God settles all that. और परमेश्वर वो सारी बातों से को निपट लेता है He's began this journey. और वो सफर शुरू करता है And probably it must have been a many days journey. और शायद ये बहुत दिनों की सफर है And they were staying in a place. और कई एक स्थान पे वो निवास करने जाते हैं And the Bible says God comes to kill Moses. और बाइबल कहता है परमेश्वर आता है मूसा को मार डालने के लिए। Yeah, probably it doesn't say how he was going to kill him. ये नहीं बताता कि कैसे उसकी हत्या करने जा रहे थे। Probably he might have got so sick he was about to die. शायद वो बहुत बीमार हुआ और मरने पर आया। And in some ways we see this God is aborting this mission that God has set Moses apart. और ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहाँ पर उसी मिशन को जिसने मूसा को अलग किया उसको वो गर्भपात करा रहा है। Moses was helpless. He didn't know what to do. मूसा विवश था, वो नहीं जानता था कि वो क्या करे।
He had a clarity of vision. उसका दर्शन स्पष्ट था, He had a clear roadmap. उसके पास नीतियां सारी साफ था, And he had so many promises from और God. परमेश्वर की ओर से इतने सारे प्रतिज्ञाएं थी, And he knew he had unending resources. और उनको पता था कि उनके पास सारा संसाधन परमेश्वर के उनके लिए थे, And there was great excitement. और बड़ा उत्साह था। And suddenly everything comes और down. अचानक सारी चीजें गिर जाता है, He's become so sick, he's वो going to die. इतना बीमार होता है कि वो मरने पर तुले हैं। And it says in the Bible, verse 24, God was about to kill him. और बाइबल में कहता है 24 परमेश्वर उनको उनकी जान लेने के लिए आया। Let me just tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ When तुम्हें, you set ourselves on mission, जब तुम और हम मिशन पे तैयार होते और निकलते हैं, there will be many hurdles that will come our ऐसे way. बहुत सारे रुकावटें आएंगे हमारे And ऊपर, God wants us to overcome those hurdles. और परमेश्वर चाहता है कि हम उन रुकावटों का परिचय And करें, that victory is not just going to come in a day or two. और वो जीत 1 या 2 दिन में नहीं आएगा, It comes as we overcome the hurdles. वो तब आता है जीत जब हम उन विपरीत चीजों के ऊपर जय पाता है। In our nation, we hear so many stories of persecution. हमारे राष्ट्र में इतने सारे कहानियां सुनते हो सताव के बारे में, As if, like Moses was, going to be killed by God. And we are, in sometimes people are in that way. They have been put in jail, they have been persecuted, they have been asked to stop the meetings. जिस रीति से मूसा को परमेश्वर की ओर से उसकी जान लेने वाले थे, ऐसे लगते हैं लोगों को जेल में डाला जाता है, मीटिंग बंद करा जाता है, सताव के द्वारा मार खाते हैं। If they had given up that night, अगर उस रात को मूसा हिम्मत छोड़ देता, we would not have this Bible. हमारे पास ये शास्त्र न होती। Yeah, if they had given up on that time, अगर वो रात हिम्मत छोड़ दिया, God was about to kill them and they said, तो जब परमेश्वर उनको खत्म करने आया और कहते सारी बातें अब खत्म हो गया, but they overcame. लेकिन वो विजयी हुआ उस पर। It's a story of overcoming. ये कहानी है विजयतों का, It's a story of victory. ये एक जीत की कहानी And है। I want to say, in a nation like ours, we got to believe if God has called us to a mission, He will fulfill और that हमें ये mission. कहना है कि हमारे राष्ट्र में जैसे हमें परमेश्वर है आगे, हमें विश्वास करना ही है कि अगर उन्हें हमें मिशन पे बुलाया तो हमें वो हिम्मत नहीं हारना है, वो हम पूरा करेंगे। Sometimes we think, God, where is it all going? कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर ये सारी बातें जा कहाँ रहा है, Will I end up in jail? क्या मैं जेल में मेरे अंत होगा, Will I get killed? क्या मेरी हत्या होगी, What about our children? हमारे बच्चों के बारे में What क्या, about our future? हमारे भविष्य के बारे में But क्या, I want to say we have a God हम कैसे कहें हमारा परमेश्वर है who is above all things. जो सारी चीजों के ऊपर है, He is an overcomer. वो विजयों का परमेश्वर है, He wants us to और overcome. वो चाहता है कि हम विजयी हो। There's always a way. हमेशा एक मार्ग है, But our God is a God who makes a way when there is no way. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मार्ग बनाता है जहां पर मार्ग नहीं है। And for Moses and their family, that was the end. और उनका मूसा और उनके परिवार के लिए वो समाप्ति था। He was so sick. वो इतना बीमार है, It doesn't say in the Bible, I'm assuming, वो बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, because it says God was about to kill him. क्योंकि वहां पे लेकर परमेश्वर उनकी जान लेने पर तुले थे। We have license to think how he was sick. तो हमारा इस सोच के लिए इतना है कि हम सोचे कि कैसे उसको मारने पर तुले थे। And the wife knew that this is the end of Moses. और पत्नी जान गई कि ये मूसा का अंत है, But she did something. लेकिन वो कुछ करती है। She knew why it was happening. वो जानती थी ये क्यों हो रहा था, And she did something amazing, और उन्होंने एक चकित करने वाली बात की which we will look at. जिसको हम देखेंगे, And they overcame. और वो विजयी हो गए। And I want to say to each one of us, और हर एक से मैं कहना चाहता हूँ, we have to overcome. हमें विजयी होना ही होना है, Otherwise, we have no future. नहीं तो हमारा भविष्य नहीं है। It's a life of faith God wants us to live in. एक विश्वास का जीवन चाहता है परमेश्वर हम जिए। Yeah, because
If God has called us, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, God has a purpose for us, अगर परमेश्वर का मकसद है हमारे लिए, and if God's mission is written all over us, और हमारे सारे अंगों पर लिखा है परमेश्वर का मिशन, He will fulfill it. वो उसमें परिपूर्ण करेगा। That is faith. ये विश्वास है। Come what may. जो कुछ हुए या ना I हुए, can sit here and tell story after story. मैं यहाँ पर बैठकर एक कहानी के बाद दूसरा कहानी बता सकता हूँ, Because at the end there is a God who helps us to overcome. क्योंकि अंत में ऐसा परमेश्वर है जो हमें The विजेता question बनाते is हैं। why God wanted to kill Moses? सवाल ये कि परमेश्वर मूसा को क्यों मारना चाहते We थे, can learn few things from और this. इन चीजों से हम कुछ सीख सकते हो। Yeah, in a way, I'm assuming. I don't want to say it with with so much of surety, but these are some of the things that we can assume and draw from the scripture. और यहाँ इस शास्त्र को पढ़ते समय मैं इतने यकीनता से नहीं, लेकिन एक समझ को लेकर कुछ चीजें को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। In a way, Moses lived in disobedience. एक तरह से परमेश्वर मूसा जो था अनाज्ञाकारिता में जी रहे थे। He ran away from Egypt वो मिस्र देश से भाग गया and he went into a land और वो एक ऐसे जगह चला गया they didn't believe in the God of Israel. जहाँ पर कोई इस्राएल का परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे। Moses was alone, मूसा अकेला था, surrounded by unbelieving people. अविश्वासी लोगों के इर्द गिर्द And slowly by slowly his faith began to go down. और धीरे धीरे उनका विश्वास भी गिरा। And the Bible says he married an unbelieving wife. और बाइबल कहता है उन्होंने एक अविश्वासी स्त्री से विवाह किया And he had two children, और two उनके boys, दो बच्चे थे, दो बेटे, and they were not circumcised. और उनका खतना नहीं हुआ था। Circumcision was a sign of the covenant. और इस्राएलियों के लिए खतना उनका वाचा का चिन्ह था। It was the sign of the covenant God made with Abraham. वो उस चिन्ह था जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया था। Genesis 17, verse 13 to 14, 39 14 says, every male child had to be circumcised. That is the part of the covenant. उत्पत्ति का 17 में लिखा है हर एक जो पुरुष बच्चा पैदा होता है उनका खतना करना ही करना है। ये उनका वाचा का एक हिस्सा था, नियम था। Verse 14 it says, any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. और लिखा है कोई भी पुरुष जिसका खतना नहीं हुआ है वो जाति से निकाल दी जाएगी, क्योंकि वो मेरा वाचा में नहीं है। Yeah, these boys have grown up. ये लड़के बड़े हो चुके हैं Some of the Bible scholars say they were in their 20s. और बाइबल के स्कॉलर बता रहे हैं कि ये तो दोनों तो 20-20 साल की उम्र में थे, But Moses did not circumcise them. लेकिन मूसा ने उनका खतना नहीं किया था। Probably he said, in this land nobody believes about circumcision. शायद इसने कहा इस भूमि में कोई खतना के बारे में विश्वास ही नहीं करता है, तो क्या जरूरत है। Maybe it's okay. शायद ठीक है, My wife चलता also है। doesn't believe. मेरी पत्नी भी नहीं विश्वास करती है, It is okay. तो ठीक है ना। So he lived in disobedience और तो वो अनाज्ञाकारिता में जी रहे थे for many years. बहुत सालों के लिए, Maybe 20 plus years. शायद 20 साल से ज्यादा। And the moment और जिस क्षण में he was cornered by God and he was about to be killed, his wife knew exactly what needed to be done. उसको परमेश्वर कोने में ले जाते हैं मारने के लिए, तो पत्नी जान जाती है क्या करना है। And she takes the firstborn तो पहला पुष्प जो बड़ा बेटा है उसको लेती है and he circumcised. और वो उनकी खतना कराती है, The firstborn. पहला जन्मा लड़का। And goes to Moses and he touches him, then the close king. और उस This is the bright blue of my blood. और वो चमड़ी को लेकर मूसा के पास जाते हैं और उससे स्पर्श करते और कहते हैं ये तुम मेरे लहू के जो दुल्हा है। Very second, और उसी क्षण में he was delivered. उनको छुटकारा He was मिलता है, healed. उनकी चंगाई होती है, The mission was restored. मिशन वापस पटरी पर आता है।
Moses lived in compromise. मूसा समझौता में जी रहे थे। So it's okay. ठीक है, It's not going to make much difference. क्या फर्क पड़ेगा? Yeah, nobody does it. यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करता। That's when God said no. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, If you want to do the mission, अगर तुम मेरे साथ मिशन पे हो if you want to be part of the covenant, और मेरे वाचा का हिस्सा होना if you want चाहते to हो, make any difference, और अगर तुम अपने जीवन के द्वारा फर्क लाना चाहते हो, you're going to do my way. तुम मेरे तौर तरीके You're से not going करेंगे, to do your way. तुम्हारे तौर तरीके से नहीं। You can't live in disobedience. तुम अनाज्ञाकारिता में जी ही नहीं सकते, You can't compromise. तुम ये समझौता कर नहीं सकते। You're going to do my way. तुम्हें मेरे तौर तरीके से ये करना And I होगा। want to say to you that something. और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, That moment, उस क्षण में his wife put his trust in the God of Israel. उसकी पत्नी ने इस्राएल का परमेश्वर में अपना भरोसा डाल दिया। Probably Moses must have told us so many stories. शायद मूसा ने उनको बहुत सारी कहानियां बताया होगा उसके पहले, About the God of Israel. इस्राएल का परमेश्वर के बारे में। He must have told the God of Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताया, And the promises they carry as Israelites. और उन प्रतिज्ञाओं को जो इजरायली होने के नाते उन पर थे। She must have said, उसने कहा, but I can't see he is living this out. लेकिन तुम्हें देखकर ऐसे नहीं लगता कि तुम ये जी रहे हो। But a day came. लेकिन एक दिन आया, God calls Moses to account. परमेश्वर मूसा को लेखादारी He देने says, को if you बुलाता। want to go and change those people, और कहता, अगर तुम जाना चाहते हो उन लोगों को बदलवाने के लिए, you got to change. तुम्हें बदलना है। Your life is going to be the greatest message that you are going to preach. तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे महान संदेश है जिसका तुम प्रचार करेगा। Your family is going to be the greatest message that you are going to preach when you get to Israel. तुम्हारा परिवार वो महान संदेश होगा जिसका तुम प्रचार करेंगे जब इस्राएल पहुंचेंगे। You तो can't live in disobedience and fulfill the commission. तुम आज्ञाकारिता में जीकर इस बुलावा को, इस नियुक्तिकरण को पूरा नहीं कर सकेगा। You can't live in compromise and say, God, I will do your mission. तुम समझौता में जीकर ये नहीं कह सकते हो कि मैं परमेश्वर तेरा मिशन करूंगा। If you want to fulfill God's mission, we got to do it God's way. अगर तुम्हें परमेश्वर के मिशन को पूर्ण करना है तो उनको परमेश्वर के तौर तरीके से करना होगा। We got to obey Him. उनके प्रति हमके आज्ञाकारी होना We है got to let go of compromise. और हमारे जीवन के समझौतों को छोड़ देना We है got to fully believe this God that we have come to और worship. संपूर्ण रीति से विश्वास करना है हमारा परमेश्वर पर जिसको बुलाया है हमें। Family on a mission. एक परिवार जो मिशन पर है, It's not just you alone. ये ना सिर्फ तुम हो अकेले, It's your wife, your children, your church. तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे कलीसिया। Church cannot live in disobedience. कलीसिया अनाज्ञाकारिता में जी नहीं सकते। Yes, maybe sometime, but you got to let go of those things and you got to obey God. हाँ, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन वो सारी बातें को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना ही You होगा। can't live a double life. At home you live something, and the church when you come you live another life. दोहरी जिंदगी तुम जी नहीं सकते, घर में कुछ और कलीसिया में कुछ और। You got to be the same at home and you got to be the same in the church. जैसे तुम घर पे हो वैसे तुम्हें कलीसिया में भी होना है। How you are at your workplace, you got to be at the church. जैसे तुम अपने काम की जगह पर होते हो वैसे भी तुम्हें कलीसिया में भी होना है। You can have different faces. दो अलग चेहरे नहीं हो सकते। You got to follow Jesus. तुम्हें यीशु के पीछे चलना होगा, Without disobedience, without compromise. बिना अनाज्ञाकारिता से और बिना समझौता I से। want to call you, people in Kolkata, people in Rukala, people in Orissa, I want to call you to be on that mission. और मैं जो तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, राउरकेला के लोग, उड़ीसा के लोग, कोलकाता के लोग, कि उस मिशन में तुम आके शामिल हो। We can't live, people know when you live double life. जब तुम दोहरी जिंदगी जीते हो लोग जानते हैं। Yes or no? हाँ या ना? Yes. Yeah, they're not fools. वो मूर्ख नहीं है। God wants us to live the same way. You live in the house, you live at workplace,
with him at the church. परमेश्वर उसी तरीके से चाहता है तुम जिए जैसे तुम घर में हो या काम पे हो या कलीसिया में हो। And he was saying to Moses, Moses, you want to set these people free from slavery? वो मूसा को कह रहे हैं, मूसा तुम इन लोगों को गुलामी से छुटकारा देना चाहते हो? I want you to change, and I want your family to change. मैं चाहता हूँ कि तुम बदले और तुम्हारे परिवार बदले। I want your wife to believe. मैं चाहता हूँ कि तेरी पत्नी विश्वास करे। I want your children to believe. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे विश्वास I करें। want your wife to carry the same promises. मैं चाहता हूँ कि वही प्रतिज्ञा है जो मैंने तुम्हें दिया वो तेरी पत्नी भी लेकर चले। I want your children to carry the same वही promises. प्रतिज्ञा तुम्हारे बच्चे लेकर चले। Then you will be powerful. तब तुम सामर्थ्यशील हो You जाएगा। have authority in the family, at home. You have authority in the church. और क्योंकि तुम्हारा अधिकार परिवार में है, घर में है, अब कलीसिया में भी है। Amen. You have authority in the home. You have authority in the nation. अगर तुम्हारा घर में अधिकार है तब राष्ट्र में तेरा अधिकार होगा। Amen. It's not the other way around. उल्टा रीति से नहीं है। In our nation, a lot of people who are, what you can say, the collectors and ministers and MPs, in the office they are like lions. और हमारे देश में जितने भी ऊंचे पद पे है, कलेक्टर, मिनिस्टर, जो भी हो, ऑफिस में वो शेर की तरह है। And घर से आएगा तो चूहा बना। Yes or no? हाँ या ना? बराबर? हाँ या ना? यहाँ बाहर शेर, अंदर चूहा। Outside lions, inside rats, mice. True. That's the culture. ये सभ्यता है, संस्कृति है। Not that's the culture. परमेश्वर नहीं चाहता है वो। And you got to be the same. तुम्हें वैसा ही होना है। And God wants you to carry His character, His nature. परमेश्वर चाहता है तुम उनकी चरित्र, उनकी स्वभाव उठाकर चले। Not only Moses lived in compromise, ना सिर्फ मूसा समझौता में जी रहे थे, he could have in some ways established his authority at home. अपने अधिकार जो है वो अपने घर में स्थापित नहीं कर पा रहे थे। Maybe he was living in a land where the nobody believed. शायद वो ऐसे जगह पर जी रहे थे जहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करते थे। And he began to use his faith to become lesser and lesser in the God of Israel. और शायद उसका विश्वास कम होते गए इज़राइल के परमेश्वर में। And started to meet with. और परमेश्वर के उनको उनसे साथ मिलना ही हो पड़ा। He met with Moses in the burning bush. जलती झाड़ी में मुलाकात की उन्होंने। Also God met with him in that inn they were staying. और उस सराय में जो जी रहे थे और ये घटना घटी वहाँ पर भी उनसे मुलाकात किया। Sometimes we will meet with God alone, and also God had to meet with us together. कभी कभी उस रीति से अकेले में हमें परमेश्वर से मिलना है और फिर परमेश्वर को मिलना है हमें हमारे परिवार समेत भी। Also Moses failed to make that small community for mission. और वो जहाँ वो जी रहे थे उस मिशन को जीतने के लिए वो असफल रहे। Zipporah and his sons, जिपोरा और उनके बेटे, they didn't know the mission that God was calling Moses. वे नहीं जानते थे उस मिशन को जो परमेश्वर मूसा को बुला रहे थे। Zipporah was important in Moses' call. मूसा की बुलावा में जिपोरा बहुत महत्वपूर्ण थी। Billy Graham is a great preacher. This is what he said. बिली ग्राहम जो एक बहुत बड़ा प्रचारक है उसने ये कहा, His family is the first and the most important mission field. परिवार जो है वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन का क्षेत्र है। Yeah, if we can do well in the family, we can do well. अगर तुम बेहतर कर सकता है परिवार में तो तुम बहुत ही बेहतर कर सकेगा कलीसिया में। That's why one of the qualifications for इसलिए an elder says he does well at home. He's
his wife and his children, and you can manage your family well so that you can manage church well. इसलिए धर्मवृद्धों की नियुक्ति में जो एक विशेष गुण हम देखते हैं वो ये बाइबल कहता है कि अगर वो घर में परिवार के साथ सही और अच्छा करता है तब वो सही और अच्छा करता है कलीसिया में भी। Okay, this story also speaks of God's grace. ये कहानी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में भी बात करता है। In spite of what Moses was and what he was in the home, मूसा कैसा था, वो घर में भी कैसे थे, इसके बावजूद भी, इसके विपरीत भी God didn't change his mind. परमेश्वर ने अपना सोच उसके बारे में बदलवाया नहीं। God used it. परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल In किया। spite of all our weaknesses and failures, हमारे सारे कमजोरियां और नाकामियों के बावजूद भी God has called us and that call remains. अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो बुलाहट हम पर बनी रहती है He meets with us in our weakness. और हमारी कमजोरियों में वो हमसे मिलता है He helps us with our weakness. और हमारी मदद में वो हमसे मिलता है। He forgives us and takes us forward. वो हमें क्षमा करता है और आगे ले जाता है। You know, yesterday Donna made a statement. कल मैंने कुछ कहा, It says mission is about God changing us. मिशन पर इसके बारे में जब परमेश्वर हमें बदलता है। Yeah. God was changing Moses in a way. मूसा एक तरीके से और परमेश्वर मूसा को एक तरीके से बदलवा रहे थे। You know, that night when God came to kill him, he learned a very vital lesson. उस रात को परमेश्वर जब उसकी जान लेने आया, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। Yeah, his whole family learned something. उसका संपूर्ण परिवार ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। Yeah, it is the grace of God that is working in you, which convicts you of sin, righteousness, and judgment to come. परमेश्वर का जो अनुग्रह तुम में अंदर कार्य करता है, यही तुम्हें एहसास देता है पाप, धार्मिकता और न्याय जो आने वाली है। It is the grace of God that God comes to rebuke us and He changes in our attitude. वो परमेश्वर का अनुग्रह है जब परमेश्वर आता है हमें बदलवाने के लिए और वो हमें ताड़ना देता है हमारे स्वभाव के लिए। Amen. His Amen. desire is that we become more like Jesus at the end of the day. उनकी इच्छा ये है कि हम यीशु की तरह और बढ़ते जाए। Yeah, I want to make a statement. मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। Your life is your message. तुम्हारा जीवन तुम्हारा संदेश है। Yeah. Sometimes people say, bring a message. कभी कभी लोग कहते हैं एक संदेश लाओ। Yeah, I get invited for various things. You know, come and bring a message. बहुत चीजों के लिए मेरे आमंत्रित किया जाता है। लोग कहते हैं आओ एक संदेश लेकर आओ। Yeah, sometimes I tell my story. कभी कभार मैं अपनी कहानी बताता हूँ। I want to say each one of us, our life is a message. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम में से हर एक हमारा जीवन ही संदेश है। So watch out how we live. तो हमें ध्यान देना है किस रीति से हम जीवन जीते हैं। So are you following what I'm saying? Are you with me? तो जो मैं कह रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हैं, ध्यान है मेरे 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 प्रति। Walk someone. किसी with को your कहो elbow ऐसा। and says, "No, be awake. Listen." उठो, ध्यान दे। Great. Your life is your message. तुम्हारा जीवन तुम्हारा संदेश है। Finally, God is looking for obedience. अंत में परमेश्वर आज्ञाकारिता को ढूंढता है। Yeah, at the end of the day, the Great Commission is teach them to obey everything that I have commanded. संपूर्ण बातें कहने के बाद नियुक्तिकरण वही है, उन्हें सिखाओ आज्ञा मानने के लिए वो सारी बातें जिसको मैंने तुम्हें आज्ञा दी। It's got that confidence in where it can teach people to obey. एक वो हिस्सा है कि हमें सिखाना है लोगों को आज्ञाकारी बनना। Yeah, it's not about just preaching
something that everybody get excited. Wow, what a great message. ये इसके बारे में इन्हें सब प्रचार करें और सब लोग उत्साहित हो क्या कितना बढ़िया संदेश। Wow, Donald is such a nice preacher. डोनाल्ड बहुत अच्छा प्रचारक है, फ्रैंको बहुत अच्छा प्रचारक है। No, that's नहीं, not, नहीं, नहीं। that's not about it. ये इसके बारे में है ही नहीं, It's about obedience. ये आज्ञाकारिता के बारे में है। In the end of the day, दिन की समाप्ति में are we obeying God? क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है? Yeah, when we hear, you Ja- know, the message from God, are we putting into practice? जब हम परमेश्वर की ओर से संदेश सुनता है, क्या उसको हमारे जीवन में लागूकरण करते हैं? You know, when God came to meet with Moses and he was struggling for life, जब परमेश्वर मूसा से मिलने आता है, वो अपने जीवन में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, and Zipporah saw that, और जिपोरा वो देखती है, and she stepped out and obeyed God. वो फिर कदम उठाती है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी She होना। could have stood far away and says, I don't understand. वो दूर में खड़े रहकर मुझे समझ में नहीं आती है, कर सकती थी ऐसा। His God is doing something with him. उसका परमेश्वर उसके साथ ही कुछ कर रहे हैं, My God is somewhere else. मेरा परमेश्वर कोई कहीं और है। She stepped out. लेकिन वो नहीं, वो कदम उठाती है, वो आज्ञाकारी बनती है। She put her trust in the Lord. उन्होंने अपना भरोसा इज़राइल का परमेश्वर में डाल दिया। Amen. It's about Amen. obedience. तो ये आज्ञाकारिता के बारे I में want है। to ask you, are you obeying the Lord? और मैं तुमसे आज पूछना चाहूंगा, क्या तुम परमेश्वर के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी हो? When God speaks to you, जब परमेश्वर तुमसे बात करता है, will you step out and will you obey? क्या तुम उस पर कदम उठाएगा, आज्ञाकारी बनेगा? We have this theme, family on a mission. ये हमारा शीर्षक है परिवार मिशन पर। You know, we have Donald and Sylvia. डोनाल्ड और सिल्विया है, You know, they heard God to go to Kolkata. उन्होंने सुना परमेश्वर से कलकत्ता जाओ। They could have sat down and said, oh, I'll pray for Kolkata. तो हो सकता है हमने बैठे बोले ठीक है, हम कोलकाता के लिए प्रार्थना करेंगे, We'll go visit sometime and come back. कभी कभार जाकर मिलेंगे, लोगों से विजिट करके वापस आएंगे। They stepped out, obeyed God, and was moved. उन्होंने कदम उठाया, बाहर गया और उस शहर में निवास करने आया। Sylvia had a good job. सिल्विया के पास अच्छी बड़ी नौकरी थी She had 3 more years to work at least. और 2 साल था रिटायर होने के लिए। She said, it's all right. वो बोली ठीक है, God has called. अगर परमेश्वर ने बुलाया है, God has called Donald. मुझे अगर परमेश्वर ने डॉनर को बुलाया, I'm going to stand with Donald. मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, I will move. मैं जाऊंगी। It was costly for them. महंगा था, All their life they lived in Mumbai. सारा जीवन हम मुंबई में जिया, And he's not a young man. और मैं कोई एकदम जवान नहीं हूँ। I won't tell his age. नहीं बताएगा मेरा उम्र, बताया भी फर्क नहीं पड़ता, Little older than me. कुछ थोड़ा ज्यादा उम्र है, But at this age, लेकिन इस उम्र में they are taking steps of faith विश्वास के कदम हम लेंगे and obeying God. और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनेंगे, Everything there. सारी चीजों को छोड़कर And they moved to another city. एक दूसरे शहर को जाएगा। Manuel and Dipshika. और इमैनुअल और दीपशिखा वो उन्होंने भी वैसा किया है। And there's so many stories. और वैसे बहुत सारी कहानियां हैं। This family here. ये परिवार जो है यहाँ पर, This family here. ये जो परिवार यहाँ पर है जिनका नाम वीडियो के कारण नहीं ले सकते, Kolkata for the last 25 years. 25 साल से वो अपने दिल में कोलकाता को उठाकर चल रहे When हैं can we move? और वो कह रहे हैं हम कब जाए, It is difficult. मुश्किल है। If today God opens the door, they will move. अगर आज परमेश्वर द्वार खोलेंगे आज जाएंगे, Willing to obey. वो तैयार है आज्ञाकारी। Problems. बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी समस्या है। Leaving another nation, come to India. एक राष्ट्र को छोड़कर भारत में आओ और यहाँ जियो। And GT and Benny, और जीजी और मिनी you told me all about our relationship. उन्होंने अपने रिश्ता के बारे में बताया हम तुम्हें। 2002, and we had the opportunity to set up a factory here. 2002 में हमें मौका मिला कि यहाँ पर एक नाश्ते फैक्ट्री शुरू करना। He was in our church in Mumbai. वो हमारे मुंबई की कलीसिया का हिस्सा था। Just come back from a year of training. 1 साल का ट्रेनिंग करके आए थे। And when this door opened, I asked him, GT, and Benny, would you mind moving there and see whether we can plant a church, we can set up this factory, and
What about your moving? तो मैंने उनसे कहा जी बिनी अगर हम वहाँ पर अब फैक्ट्री शुरू करना है तो हम आपको ठीक लगेगा कि आप वहाँ पे जाए चली से शुरू करें फैक्ट्री शुरू करें क्या सोचते हो तो They prayed. उन्होंने प्रार्थना की So yes, we are willing. और उन्होंने कहा हाँ हम तैयार हैं I served one in the month of July 2003. और 2003 जुलाई महीने में मुझे अभी भी याद है We had the Wagner car, they put everything. उसने set out. उनकी वैगनर गाड़ी थी उन्होंने सारी चीज़ें उसमें डाला और निकल पड़े बहरमपुर के लिए It is grammable also. It is difficult. Living here is difficult. Everything is difficult. They didn't say, oh, we want to come back. उन्हें कुड़कुड़ाया नहीं कि इस ब्याह जीना मुश्किल है हाँ मुश्किल है लेकिन कभी नहीं कहा कि हमें वापस आना है I'm just telling you two stories. मैं चंद कहानियाँ बता रहा हूँ But at the end of the day, it's a week. लेकिन दिन के अंत में ये आज्ञाकारिता के बारे में है Yeah, if you're not obeying the law, अगर तुम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी नहीं है you know, we're going to ask ourselves, तो हमें अपने आप से पूछना है is God, are you speaking to me? प्रभु क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं इस वक्त If God is speaking to us, अगर परमेश्वर हमसे बात कर रहा there's है an element of obedience at the end. तो उसमें एक हिस्सा है आज्ञाकारिता जिसको हमें निभाना पड़ता It है cannot be big steps like moving. बड़ी बड़ी कदम नहीं होगा शायद कि हमें कहीं और जाना It है may be small steps. शायद छोटे छोटे कदम Those होंगे are steps that will take you further. लेकिन into the वो mission. ऐसे कदम है जो तुम्हें उस मिशन के अंदर और गहराई से लेकर जाएगा There is no mission without obedience. अगर आज्ञाकारिता नहीं है मिशन नहीं है Now, Corrie ten Boom is a great, wonderful lady. He said, God does not bless good intention, He blesses obedience. कोई टेंबुम जो एक बहुत मशहूर महिला है मसीह वो कहता है परमेश्वर अच्छे इच्छाओं को आशीषित नहीं करता है वो आज्ञाकारिता को आशीषित करता है Back in, and we have the greatest example, our Lord. और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह He was God and God Himself. वो परमेश्वर था और स्वयं परमेश्वर था And they lived it as a triune God together in great fellowship, वो त्रिएकता की एकता में जी रहे थे reigning and ruling in majesty. राजसी रूप से राज कर रहे थे One day, Father said, और एक दिन पिता कहता है will you go? क्या तुम चाहेगा He said, yes. और वो कहता हाँ As Galatians 4 verse 4 says, in the fullness of time, the Father sent His Son. और गलातिया 4:4 में लिखा है समय के अनुरूप में परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा Yeah, and Jesus came down और यीशु नीचे आया and He fulfilled the great work on the cross. और उन्होंने वो सूली का महान कार्य का परिपूर्णता कर डाला God told Pharaoh, Israel is my firstborn, let my son go, so that he might worship. परमेश्वर ने फौरन से कहा इज़राइल मेरा प्रथम जन्मा हुआ बेटा है उन्हें जाने दीजिए ताकि वो मेरी आराधना कर सके Pharaoh refused. God struck down Egypt's firstborn. फैरौन ने Israel इनकार किया परमेश्वर ने फैरौन के पैदा पुत्र को खत्म कर दिया That story doesn't end in Exodus, it ends with Jerusalem. और वो कहानी निर्गमन में खत्म नहीं होती है वो यरूशलेम में खत्म होती है He sent His firstborn, वो अपना प्रथम पुत्र को भेजता है Jesus Christ. यीशु मसीह He was punished for our sins. और हमारे पापों के लिए वो दंडित किया गया His blood brings us into God's family. उनका लहू हमें परमेश्वर के परिवार में ले आता है Through Him, we are family on a mission. और उन्हीं के द्वारा हम मिशन पर एक परिवार जाते हैं Amen. Come on, challenge it. और आज मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ Number one, पहला you know you're on a mission. क्या तुम जानते हो तुम एक मिशन पे हो Yeah, God is calling you. परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है God has appointed you. तुम्हें नियुक्त किया है And God wants you to bear fruit. और परमेश्वर चाहता है इसमें तुम फलवंत बने You're on a mission. अगर तुम मिशन पे हो Is there anything that is stopping? तो ऐसी कोई बातें हैं जो तुम्हें रुका रहा है Is there disobedience? क्या अनाज्ञाकारिता है तुम्हारे जीवन में Compromise? समझौता Is there something that you're not obeying the Lord? ऐसी कोई चीज जिसमें तुम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है If God is speaking to you, और अगर परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है obey. जाकर आज्ञा मानो
because He will use when days to come. क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में। Like as I said yesterday, जैसे मैंने कल कहा, there's an acceleration. एक तेज गति हो रही है। Yeah, it's not traveling in world not. अभी कोई परिवार बैलगाड़ी में नहीं है, Yeah, those days are not. वो दिन निकल गए। And I'm not going in first year, फर्स्ट गियर में भी नहीं, not going in second year, सेकंड गियर में भी नहीं, not going in third year, थर्ड गियर में भी नहीं, going in fourth. फोर्थ गियर में। God wants to increase His activities in the churches here. और परमेश्वर चाहता है जो वो कर रहा है वो और गति हो इन कलीसियाओं में जो यहाँ पर मौजूद है। Church in Roodkala, I don't know about your church. रूरकला की कलीसिया के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। God has got a great plans and purposes. बड़ी बड़ी योजनाएं और मकसद हैं परमेश्वर तुम्हारे लिए। And the church in Kolkata, कोलकाता के लिए it just started. अभी अभी शुरू हो रही है, Like it is going to become a massive, big church. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कलीसिया बनेगा। Yeah, your life will be your message. तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश होगा। Everybody comes seeking after you. लोग आएगा तुम्हें ढूंढने के लिए। Amen. They'll find you in church in और Orissa. अंत में उड़ीसा की तो कलीसिया है, It's not dead. वो मरा हुआ नहीं है, It's alive. वो जिंदा है It's got great potential. और बड़े बड़े क्षमता रखता है वो। Now find that potential. उस क्षमता को खोज निकालो, Ask God for that potential. मांगो परमेश्वर से उस क्षमता के लिए। Suddenly God will और bring forth. अचानक परमेश्वर And His sons and चीजों को बाहर ले आएगा और उसमें बहुत सारे पुत्र और पुत्र जन्म daughters होगा। are ours. अब हम अपने जीवन को अर्पित करें।